everyone, welcome to Joy's World. Hope you are all fine. Today what I am going to discuss is a bit difficult topic, and there is no perfect answer to that question, that how to make our children listen to us, how to make children listen to their parents. We as parents are like batsmen, and children are throwing the ball at us, they are bowling at us again and again, and we have to bat. We just cannot get out, we just cannot run away from the crease, we have to bat, and we have to tackle them whatever the situation is. We have to make them behave properly, we have to make them listen to us, and at the same time be calm and patient with them. So it seems a difficult thing, right? But again, I would say that like any other thing, like any other work we have to plan for it. We just have to plan for this also. We have to plan for the most important thing of our life, that is parenting. And from with few things, if we plan a few things, we can improve ourselves. We cannot be perfect, but somehow we can improve. We can bring improvement in the relationship between us and our children, and we can improve our children. We can make them better human beings. That's what every parent wish, that their children be obedient, they be smart, they be loving, and they just be in good human being, right? So I'm going to share some of the tips, and I'm still working on it. I'm still, as a parent, trying to improve myself, and I would like to share some tips which I have tried and tested on myself and with my children, so that our relationship become better and my children listen to me. So the first thing that I would like to share with you all is make them comfortable. Make them comfortable in a sense like, of course this is our home and children are comfortable, but make them comfortable in a sense that they are comfortable talking to us, they are comfortable in saying whatever they wish to. Whether it's right or wrong, it cannot be every time whatever the children are saying is right, is correct, but somehow they should have the freedom to speak. They should have the freedom to be comfortable in whatever however they are behaving, either bad or good, that you'll have to correct, but at least they should have the freedom. They should have the confidence to speak up at home at least. So from home only, their first, this is the beginning of building the confidence within us. So they should have the freedom to speak, and you should make an environment that they are comfortable in speaking and telling whatever is in their mind and whatever they want to do. And further, there is a process to make them correct if they are wrong. It's our duty, it's our this thing to make them correct. And whenever the child is doing something wrong or saying something bad or saying something wrong, if you want to stop them from doing that and stop them from saying such things, so you should always say the positive aspects of, if you if you will do this, what good things you will achieve, or what are the positive aspects of particular thing if you are going to do this. Don't say that this is bad, this is wrong, you are doing whatever you are doing is wrong, it's wrong negatively. Whenever, it's a human nature that if we are being stopped from doing something, and we are always if somebody says us that it's so bad, whatever you are doing is bad, it's not correct, we do not believe in that. We just get angry, we just
don't accept that. So try to make things positive. Try to say that if you will do this, what good things you will achieve. If you are suppose children are watching too much TV, वो बहुत ज़्यादा TV देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, and you want to stop them from doing that. So सीधा नेगेटिव, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी, तुम्हारी ये हो जाएगा, तुम ये हो जाएगा. तो बैड थिंग जैसे दिमाग में कान में जाती है बच्चे के, तो उसके ऊपर एक गलत सा एक एंग्रीनेस आ जाती है उसके अंदर. सो रादर देन सेइंग दिस, उसे इस तरह से हम कह सकते हैं, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप अगर टीवी नहीं देखो तो आपके पास ऐसा ये टाइम मिलेगा, तो यू कैन डू सच थिंग्स, यू कैन डू दीज थिंग्स. मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ अगर हम एक्सप्लेन करें बच्चे को तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा. अच्छा, मतलब मुझे ये अच्छी चीज़ मिलेगी, ये अच्छा मेरे साथ होगा. ये चीज़ें पॉजिटिविटी के साथ अगर हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को, या ये ह्यूमन नेचर है, किसी के साथ भी हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बता दें कि ये चीज़ें इसमें पॉजिटिव हैं, तो हम और बच्चे जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू नॉट say negative things at first. You can tell some of the other things, but सारी शुरुआत में ही सारा कुछ नेगेटिव बोल देने से बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चों को, एंड वो चीज़ को करना चाहते हैं जिससे हम उन्हें रोक रहे हैं, और वो नहीं करेंगे जिसे हम जो हम करवाना चाहते हैं. सो ये चीज़ है कि बी पॉजिटिव. पॉजिटिविटी इज़ ऑलवेज गुड, and with children it's very very important. So be positive and say positive things, and that will work, that will definitely work. And make a whenever you are wanting your children to do something, to make them do, make a achievable goal जो वो अचीव कर सकें, जिसको अचीव करने में उन्हें तकलीफ़ ना हो, जिससे वो परेशान ना हो, जिसका उन्हें बोझ ना लगे. तो वो जब जल्दी अचीव कर लेंगे कोई चीज़ तो वो हैप्पी फील करेंगे. दे विल फील हैप्पी, दे विल फील सेटिस्फाइड. व्हेन यू विल अप्रिशिएट देम, दे विल फील हैप्पियर, एंड वो फिर दूसरे काम करने में, दूसरी चीज़ें मानने में उन्हें आसानी होगी, और वो खुशी से उस तरफ बढ़ेंगे. अगर आप पहले ही उनका टारगेट बहुत बड़ा सा रख दें कि आपको ये करना है, इतना सारा काम करना है, या इतना सारा वर्क करना है, या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ, तो वो पहले एक तो डर जाएंगे, ऊपर से उन्हें बोझ लगेगा. वो जब करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे, वो अचीव नहीं कर पाएंगे उस गोल को, तो वो रुक जाएंगे, वो थक जाएंगे, वो फिर दोबारा आपको सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, और उनका मोरल डाउन हो जाएगा, एंड दे विल अपने ऊपर से एक बिलीफ, एक वो कॉन्फिडेंस उठ जाएगा. सो हमें ऐसे छोटे छोटे टास्क, ऐसे छोटे छोटे गोल्स बच्चों के सामने रखने हैं जिसे वो अचीव कर पाएँ हैप्पीली एंड ईजिली. फिर धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टाइम के साथ साथ हम उनके चीज़ों को, उनके टास्क को बढ़ा सकते हैं. एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम. कुछ उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर दें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम पर आ जाती है तो हम उस काम को अपना समझ के करते हैं. जब आप बॉस बनते हैं, अगर आप बच्चों के ऊपर यू विल डू बॉसिंग, अगर आप हमेशा बॉस की तरह काम करेंगे, और उनको ये फील होगा कि आई हैव टू डू, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मा पापा की, एंड आई हैव टू डू दैट फॉर देम. सो वो उतनी खुशी से उस काम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस काम को नहीं करेंगे, या उस तरह का बिहेव नहीं करेंगे. ट्राई टू मेक देम द बॉस, कि आपका ये काम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसके ओनर हो. ओन जब कोई चीज़ इंसान कर लेता है और अपना समझ के कोई काम करता है, तो वो उसे बहुत अच्छी तरह से करता है और खुशी से करता है, और उसे प्राउड फील होता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग. सो बच्चों के साथ भी है, उन्हें छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, एंड उन्हें ये फील कराएं कि दिस इज़, तुम इस अगर वो गलत भी किसी तरह से कर रहे हैं, तो हम हर चीज़ में, अगर हम हर स्टेप में उन्हें टोकेंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करेंगे, वो ओन नहीं करेंगे उस काम को. सो हर चीज़ में स्टेप्स में टोके ना. जब हमें तो गाइड करना है डेफिनेटली कि बच्चा सही कर रहा है या नहीं, अगर कहीं गलत कर रहा है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, घर का काम हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, या बिहेवियर हो उसका. ऑफ कोर्स वी हैव टू स्टॉप देम इफ़ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट उस प्रोसेस में हमेशा हमें टोकना नहीं चाहिए.
उन्हें एक तरह से असाइन कर दें कि हाँ ये आप कर लो। अगर कुछ गलत होता है सो उसे भी पॉजिटिव तरीके से, जैसे मैंने कहा कि हमें किसी काम से रोकने के लिए उन्हें पॉजिटिव वे में समझाना है। सो पॉजिटिव वे में हम धीरे धीरे उन्हें बाद में समझाएं कि ऐसा नहीं, ऐसा है ये काम। सो वो सीखेंगे, वो समझेंगे, बट उस काम को जब वो ख़त्म कर चुके होंगे तो वो उस काम को ओन करें कि ओनरशिप उनको मिली होगी उस काम की, तो उस चीज़ का उन्हें सेटिस्फैक्शन और खुशी होगी। तब वो दोबारा जो भी काम करने जाएंगे तो उस खुशी के साथ और वही उस कॉन्फिडेंस के साथ वो करें। एंड डू मेक एप्रिसिएशन चार्ट। ये लिटरली आपको बनाना है एप्रिसिएशन चार्ट बच्चों के लिए, और उनमें आप स्टार्स दीजिए। ये नहीं कि उन्हें गिफ्ट्स ही ला के दें, स्टार्स देना, एप्रिशिएट करना, बड़ा छोटा बच्चा हो या बड़ा इंसान हो, हमेशा एप्रिसिएशन सबको पसंद होता है। इनफैक्ट कंपनीज़ में, ऑफिसेज़ में एप्रिसिएशन मिलता है तो एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ता है और वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो बच्चों के साथ तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है उन्हें एप्रिशिएट करना। छोटा सा काम भी अगर उन्होंने किया है तो ये नहीं अरे ये क्या करा, ये किया तो क्या किया, ऐसा बिहेव बिल्कुल ना करें, उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करें। एप्रिशिएशन चार्ट आप जो काम करवाना चाहते हैं बच्चों से या जिस तरह से बिहेव कराना चाहते हैं बच्चों से, उनकी लिस्ट बनाएं और एक वीकली चार्ट बनाएं या मंथली चार्ट बनाएं और उसमें आप ज़रूर स्टार्स दें। जब वो बच्चा उस काम को, हो सकता है ब्रश करना, टीथ नहाना, अपने बुक्स जमा के रखना, कोई भी काम जो आपको लगता है कि बच्चा नहीं कर रहा है या उसे करवाना है आपको, तो उस लिस्ट में वो काम लिखें और उन्हें स्टार्स दें। 2 बच्चे हैं, अलग अलग चार्ट बनाएं। एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होता है बच्चों में भाई बहन के साथ, तो वो खुशी से थोड़ा सा देखेंगे एक दूसरे का चार्ट और उन्हें लगेगा कि हाँ हम अचीव कर रहे हैं, हम वो अचीव करना चाहेंगे कोई चीज़। सो एप्रिशिएशन चार्ट ज़रूर बनाएं और उन्हें ज़रूर अप्रिशिएट करें उनके छोटे छोटे कामों में, एंड दिस विल डेफिनेटली वर्क और बच्चे काम करना शुरू करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग, आप जब भी उन्हें डांट रहे हैं, डांटना पड़ता है, ये नहीं कि बिल्कुल डांटना ही नहीं है, बोलना पड़ता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है हमें, तो मेक इट शॉर्ट। मतलब हम लेक्चर बहुत बड़ा ना बनाएं, छोटे सेंटेंसेस में स्ट्रेट उन्हें बता दें, बट आप ज़्यादा बोलकर या ज़्यादा तेज़ आवाज़ या गुस्सा या बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना बोलें। वो बहुत ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है उसको समझ नहीं पाते हैं, उनकी मेन गलती या उनकी मिस्टेक को समझ नहीं पाते हैं और वो पूरा आपके लेक्चर को बहुत नेगेटिवली ले लेते हैं। सो डोंट मेक योर स्कोल्डिंग टू हार्ड ऑन योर चिल्ड्रन, मेक इट ईजी एंड ऑलवेज सेट एन एग्ज़ाम्पल। हम सोचते हैं हम बड़ी बड़ी चीज़ें जो गलत नहीं कर रहे हैं हम, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना या कोई भी गलत काम जो हम नहीं कर रहे हैं, उसी में हमें एग्ज़ाम्पल सेट करना है और वो देखकर बच्चा अच्छा बनेगा। बट जब हम छोटे छोटे काम हो, घर के काम हो या कुछ छोटी चीज़ें हो, उसी में वो भी चीज़ें बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं, हमारी देखते हैं, तो हमें जिस तरह से बच्चे को छोटी चीज़ों को लेकर उन्हें से बिहेव कराना है, घर पर बिहेव कराना है, सो यू विल हैव टू सेट एन एग्ज़ाम्पल फॉर दैट। आपको खुद एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा, जैसा आप अपने बच्चे को चाहते हैं वो बिहेव करे और चाहते हैं जो काम करे। तो टारगेट या एग्ज़ाम्पल हमें बड़ी चीज़ों का ही नहीं सेट करना है, बट हमें छोटी छोटी चीज़ों, घर की स्मॉल चीज़ों पर हमें एग्ज़ाम्पल सेट करना है। Either of the parent, you'll have to set an example, then only children will follow you. Children हमें देखकर हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमें देखकर बहुत सीख रहे हैं या हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट हमें ही बच्चे, पेरेंट्स को ही बच्चे देखते हैं और हमसे ही सीखते हैं। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रूथ ऑफ द लाइफ, दैट बच्चे पेरेंट्स को ही देखकर सीखते हैं और उनके जैसा कॉपी करते हैं, उनको करते हैं। सो सेट एग्जाम्पल फॉर स्मॉल थिंग्स ऑल्सो, not only for bigger things but for small things also. And last but not the least, as you all know, talk and listen. Talk and listen. बहुत ज़रूरी है उनसे बात करना
एंड बहुत ज़रूरी है उनको सुनना। आप उनसे बात करिए। आप जैसे अपने ऑफिस के काम के लिए टाइम असाइन कर लेते हैं कि इतने टाइम मुझे ये करना है, इतने टाइम मुझे ये करना है, सो मेक श्योर कि एक पर्टिकुलर टाइम यू विल हैव टू असाइन कि मुझे इतना वक्त बच्चे से बात करना है। एंड डोंट मेक इट अ टास्क कि हाँ बैठो और मुझसे बात करो। वो बच्चे इरिटेट हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। कैजुअली आप उनसे बात करें एंड उनके रूटीन के बारे में, उनके वर्क के बारे में, उनके फ्रेंड्स के बारे में। डू टॉक टू देम अबाउट देयर फ्रेंड्स, अबाउट द थिंग्स दे इन्जॉय। नॉट ओनली कि आप जब भी बात करें उनको उनके काम के या उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए बात करें, बट let them talk to them about the things they love, they enjoy playing, about their friends, about their whatever they are watching on TV. So ये चीज़ें बात करने के लिए बच्चे एक्साइटेड होंगे और वो बात करना चाहेंगे आपसे। अगर आप सिर्फ उस बारे में बात करेंगे जो कि काम आपको उनसे करवाना है या इंस्ट्रक्शंस उनको देना है, तो वो ऑब्वियसली वो खुश नहीं होंगे आपके बात करने से और उनके ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो मेक श्योर कि यू टॉक टू देम एंड लिसन टू देम वेन एवर दे आर टॉकिंग। बिकॉज बच्चे प्लान करके बात नहीं करेंगे आपसे कि हाँ अभी मम्मा पापा फ्री हैं सो अभी वील टॉक, अभी कुछ कर रहे हैं। जब उनके दिमाग में कुछ आता है दे वांट टू टॉक, दे वांट टू टेल देयर पेरेंट्स अबाउट अ सर्टेन थिंग जो उन्होंने कुछ मिला या उनको हुआ। एंड बहुत बार हम मिस्टेक कर जाते हैं इफ़ वी आर बिज़ी एंड इफ़ वी आर डूइंग समथिंग, हम अवॉइड कर देते हैं उनसे बात करना। नहीं अभी रुको, अभी बाद में बताना। ये चीज़ें बहुत गलत हैं एंड दिस हैज़ टू बी चेक्ड। और ये चीज़ हम गलती करते हैं and this is bad. We'll have to listen to them whatever we are doing. We'll have to stop and listen to them and we'll have to let them talk to us and we should talk to them. So ये कुछ points हैं and I hope इससे हमारी parenting थोड़ी improve होगी, मेरी भी hopefully, because I'm trying these steps and I'm trying to implement and trying to make the relationship with my children better and trying to make my children better. So hope you all like my video and do hit the like button if you like my points and do subscribe to my channel if you are new here and check out more videos which I have made on parenting tips and you'll really like it. And do hit the like button and thank you so much for watching. Bye for now.